Activity 4. Part 2 of the story. After much searching, the king's men found a splendid deodar tree growing not far from the city. It was worshipped by the people of many villages round about, because within it lived a goddess, and it was she who gave the tree its great strength, size, and beauty. When the Prime Minister and his men decided that the column of the king's palace must be made from this lofty deodar tree, they came with garlands मतलब फूलों की माला, lamps and music to pay their respect to the goddess inside, and to warn her that she must leave her abode मतलब घर. Within 7 days, it had to be cut to the ground. जब राजा के सिपाहियों को पता चला कि जो राज्य में इकलौता देवदार पेड़ है जिसकी लोग पूजा करते हैं और उसमें गॉडेस रहती है, वो बहुत सारे ढोल नगाड़ों के साथ में, दियों के साथ में और फूलों की माला के साथ गॉडेस को पूजने के लिए आया और उसको रिक्वेस्ट करने आया कि उसे ये पेड़ छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ये पेड़ को कट करना है. They lit their lamps and placed them in a circle round the tree. They hung their garlands upon the branches. Then, joining hands, some danced and others sang. With cruel axe we have come to fell your age-long home. Forgive us, great tree goddess, we dance before your throne. To please the king we must cut down your loveliest tree. वो लोग ये गाना गाते हैं पेड़ के चारों तरफ गोल घूम के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग जोर जोर से गाना गाते हैं कि हम एक क्रूअल एक्स के साथ पे आए हैं तुम्हारा घर काटने के लिए, हमको माफ कर देना ट्री गॉडेस, और हम तुम्हारे सिंहासन, तुम्हारे पेड़, तुम्हारे घर के सामने नाच रहे हैं. हमको राजा को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारा ये प्यारा पेड़ काटना पड़ेगा. The tree goddess heard and understood what was about to happen. Tree goddess ने ये बात सुन ली और वो समझ गई तुरंत कि क्या होने वाला है. She remained quiet as a resting breeze for a few moments, and then all her leaves began to whisper, and her topmost branches bowed. The man went away, satisfied that she had heard and understood. वो समझ गई और उसने, जो ट्री गॉडेस थी वो एकदम से शांत हो गई और थोड़ी ही देर में उसकी ट्रीज जोर जोर से आवाज करने लगी और उसकी जो ब्रांचेस थी वो नीचे झुकने लगी. तो उसे जो राजा के सिपाही थे वो समझ गए कि गॉडेस ने उनकी प्रार्थना सुन ली और वो वहां से चले गए. At night, when the king was asleep, a glorious figure appeared to him and spoke in a voice that was like the rustle of autumn leaves. I am the goddess of the Deodar tree, great king. Your men have told me that you intend to cut me down. I have come to beg you to change your mind. No, my mind is made up, answered the king in his dream. Yours is the only tree in all my parks strong enough to support by itself a palace, and therefore I must have it. But consider, O king, for hundreds of years I have been worshipped by people of all villages in your kingdom, and nothing but good has gone out from me to them. The birds nest in me. I send a most lovely shade upon the grass. Men rest against my trunk, and wild creatures rub themselves against me. The earth blesses me and sends up new plants and herbs under my protective arms. I bind the earth with my strong roots. Children play at my feet, and women returning from the field seek refuge in my coolness. उस रात राजा जब सो रहा था तो ये जो ट्री गॉडेस है ये उसके सपने में आई और उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि राजा, तुम जो पेड़ काटना चाह रहे हो वो मेरा घर है, उसे कई लोग बरसों से पूज रहे हैं, कई चिड़ियों का घर है उसमें, बच्चे मेरे आजू बाजू खेलते हैं, मैं मदर अर्थ को अपने जड़ों से पकड़ के बैठी हूँ, इतने सारे विलेजेस
विलेजर्स हैं जो मुझे प्रे करते हैं, बहुत सारे लोग मेरी छांव में बैठते हैं, तुम क्यों इस पेड़ को काटना चाहते हो? पर राजन जो था वो एकदम डिटरमिन्ड था और उसने कहा कि मैंने अपना मन बना लिया है, अब तो मैं वो पेड़ काटूंगा। ठीक है। एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड द पीपल शो देयर रिस्पेक्ट टू द देवदार ट्री? The people showed their respect to the deodar tree by placing lamps around it, garlanding the branches, dancing and singing, and asking the tree goddess to forgive them. जो लोग हैं वो देवदार ट्री के आसपास दिए जलाते हैं, उसकी ब्रांचेस पे माला चढ़ाते हैं फूलों की, और आजू बाजू उसके डांस करके और गाना गा के उस ट्री गॉडेस से क्षमा मांगते हैं। Why did Prime Minister and his men decided to pray to the Deodar tree? The Prime Minister and his men decided to pray to the Deodar tree because within it lived a goddess who gave the tree its great strength, size and beauty. जो प्राइम मिनिस्टर था और उसके आदमियों ने ये डिसाइड किया कि वो जो ट्री में गॉडेस रहती है उसको प्रे करेंगे, क्योंकि वो ही गॉडेस की वजह से जो पेड़ है वो शक्तिशाली है, खूबसूरत है और इतना विशाल है। क्वेश्चन 3, इमेजिन दैट यू आर द गॉडेस ऑफ ट्री, हाउ वुड यू कन्विंस द किंग टू चेंज हिज माइंड? नाउ आपको ये आंसर लिखना है कि अगर आप गॉडेस होते ट्री के तो आप राजा को किस तरीके से कन्विंस करते। ओके। एक्टिविटी 6, third part of the story. That's true enough, good tree goddess, said the king. But all the same, I cannot spare you. My mind is made up. My will cannot be shaken. राजा बोलता है तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने अपना मन बना लिया है और अब मैं वो पेड़ काट के रहूंगा। The tree goddess sank her head upon her breast and spoke in tones of great sorrow. जो ट्री गॉडेस थी वो बहुत दुखी हो गई और उसने अपना सिर लटका लिया और उसने बड़े ही दुख के साथ कहा, देन माइटी किंग, ग्रांट मी वन लास्ट रिक्वेस्ट, लेट मी बी फेल्ड इन 3 parts. First my head with its crown of waving greenery, next my middle with its 100 strong arms and hands, and last my base, which bears the heaviest and knottiest of my limbs upon it. जो पेड़ की रानी थी, जो देवी थी, उसने कहा ठीक है राजन, तो फिर तुम मेरी एक आखिरी विश को पूरी करो और मेरे पूरा पेड़ है उसको 3 पार्ट्स में काटो। सबसे पहले हेड, उसके बाद में मिडल और फाइनली मेरे जो बेस है उसको। दिस इज अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, सेड द किंग. I have never before heard of someone who wished to suffer the death stroke thrice. Why not suffer it once and have done with it? The reason is plain, said the tree goddess. Dozens of young deodar trees have sprung from me and have grown up around me. Should you fell me with one mighty stroke, my weight would certainly crush all my children to death. But if I suffer the stroke 3 times and fall in 3 pieces, some of the young ones may escape. Is my prayer granted? वो राजा बोलता है ये तो बड़ी ही अजीब सी ख्वाहिश है तुम्हारी, तुम 3 बार क्यों मरना चाहती हो? एक ही बार में तुमको स्ट्रोक मिलेगा और तुम्हारा पेड़ कट जाएगा, क्यों तुम 3 बार डेथ को फील करना चाहती हो? तो वो बोलती है गॉडेस की बहुत सिंपल सी चीज़ है, मेरी वजह से और भी कई देवदार, छोटे छोटे देवदार पेड़ों ने जन्म लिया है, वो मेरे आजू बाजू ही बड़े हो रहे हैं। अगर तुम मुझे 3 पार्ट्स में काटोगे तो कुछ देवदार ट्री उसमें से बच जाएंगे, लेकिन अगर तुम एक ही बार में मुझे काटोगे तो वो सब एक साथ मर जाएंगे। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी और क्या आपने मेरी ये विश मान ली? तो राजा कहता है इंडीड इट इज, एज द ट्री गॉडेस फेडेड फ्रॉम हिज विजन।
The next morning, the king called his children and his ministers and his foresters to him and told them that he had changed his mind and that the column for the new palace be built of stone, not wood. अगले दिन राजा ने, उस समय तो राजा ने गॉडेस की बात मान ली और गॉडेस उसके स्वप्न में से चली गई। लेकिन नेक्स्ट डे राजा ने अपने सभी बच्चों को, मिनिस्टर्स को और जो फॉरेस्टर्स थे लकड़हारे, उनको बुलाया और उसने कहा कि उसने अपना दिमाग बदल लिया है और अब वो जो कॉलम बनाना है महल के लिए वो किसी पेड़ से काट के नहीं बनाएगा बल्कि स्टोन से बनाएगा। For said he, within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. वो कहता है मेरे से भी ज्यादा पवित्र और अच्छी रूह, मतलब देवी, उस देवदार पेड़ में रहती है, इसलिए मैं अब देवदार को नहीं काटूंगा। And he told them of his vision, and they all marveled. And the king built his palace upon a great column of stone. राजा ने अपना जो सपना था वो उसके मिनिस्टर्स और बच्चों के साथ में शेयर किया और वो सब ये सपना सुन के खुश हो गए। लेकिन उसके बाद जो राजा था उसने अपना जो कॉलम था वो स्टोन से बनाया, ना कि वुड से। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ किंग, नो वन बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ वुड एनी मोर, द हाउसेस वेयर। राजा का ये एग्जाम्पल लेके किसी ने भी फिर उसका किसी भी लोगों ने उसका जो उनके जो घर थे वो लकड़ी के ना बनाए। द हाउसेस वेयर मेड ऑफ स्टोन एंड ग्रेट देवदार्स वेयर एबल टू स्प्रेड फ्रीली थ्रू द फॉरेस्ट। किसी ने भी घर लकड़ी का नहीं बनाने से क्या हुआ, जो देवदार ट्री थे वो फ्रीली पूरे फॉरेस्ट में फैल गए और बड़े होने लगे। एंड इफ यू गो अप इनटू द माउंटेन्स, said grandmother, you can still find those forests. अगर तुम आज भी हिमालयंस में जाओगे तो तुम ये वाले फॉरेस्ट, देवदार ट्री के फॉरेस्ट देख पाओगे। All the way up the sacred river Ganga to its source near the eternal snow. वो गंगा की प्लेन से चालू होते हैं, ऐसा लगेगा जैसे फॉरेस्ट गंगा प्लेन से चालू होता है और स्नो यानी हिमालयाज में जहाँ स्नो मिलती है हमको देखने, वहाँ तक देवदार पेड़ के जंगल हैं। एक्टिविटी 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु सेड टू हुम, यहाँ पे आपको लिखना है हु सेड टू हुम। इन द टेक्स्ट बुक ओनली यू विल डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो you have to write the answers. Dozens of young deodar trees have sprung from me and have grown up around me. ये बात किसने कही थी? तो ट्री गॉडेस ने कही थी राजा से। Within the deodar tree lives a spirit nobler than my own. ये बात राजा ने कही, तो राजा said to his children, ministers and foresters. The reason is plain. The tree goddess said to the king. Question number 2, did the king change his mind? How can you say that? See, here you have to write, yes, the king changed his mind because he decided to build the column of his new palace of a stone and not of wood. This is your answer.